ओके, सो मैम बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है अभी तक, एंड नाउ आई एम गेटिंग मोर क्यूरियस कि हाउ डिड योगा कम इन पिक्चर नाउ? आप योगा भी करते हो, मुझे पता है कि आपने बिकॉज इतने सारे बिजनेसेस हैंडल किए हैं, एंड आप, मैंने जितना आपके बारे में रिसर्च भी किया है, पढ़ा है, मुझे पता चला कि आपने योगा भी प्रैक्टिस किया है काफी टाइम के लिए। सो ये कब कब आया आपके लाइफ में? 2013 आई विजिटेड एस व्यासा यूनिवर्सिटी। वहां पे एक आरोग्य धाम है कि जहाँ पे तुम 8 दिन रह के कुछ पॉजिटिव हेल्थ के लिए कर सकते हो। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि इफ यू हैव अ गुड हेल्थ, गुड हेल्थ मीन्स नॉट फिजिकली, मेंटली ऑल्सो। फिजिकल हेल्थ का इंपॉर्टेंस तो कोरोना में सबको समझ गया, बट मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होना, जैसे स्टॉक मार्केट गेव मी काफी अच्छी मेंटल कैपेसिटी टू bear losses as well as to bear people's reactions and actions. But I used to be always cool, you know. Instead of reacting, मैं response ही देती थी, हो जाएगा, कर लेंगे। तो मुझे ऐसे लगने लगा कि yes, I have something spiritual in mind. As I told you, my father, he was a really lover of Indian ancient sciences. Like he used to like and read Ayurveda. Then he developed some product also. His firm's name is Goka Company, which he was running. Then naturopathy है, वास्तु है, numerology है, astrology है. So I also thought कि मेरे अंदर भी वो जीन्स है, और मुझे भी लग रहा है कि इंडियन एंशिएंट साइंसेस में बहुत कुछ है जो हम वर्ल्ड को दे सकते हैं। और जब मैं इस वैसा गई तो मुझे एकदम अट्रैक्शन हो गया कि देखती हूँ तो वेस्टर्न ज्यादा लोग हैं, वेस्टर्न यानी यंगस्टर्स, और हमारे जो लोग हैं सब सीनियर सिटीजन है इंडियन। तो वाई इंडियन थिंग्स कि योग इज फॉर सीनियर सिटीजन, मुझे समझ में नहीं आया, पर मैंने डिसाइड किया कि हम भी कुछ स्टडी करते। फिर वहां पे एक कोर्स था YIC, योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स, विच नाउ आई एम ऑल्सो रनिंग एज एन एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट, एंड मोर देन 300 YIC स्टूडेंट्स वी है passed out and placed, and they are doing good job, and globally also they have got career opportunities. तो ऐसे योगा फील्ड में मेरी जो एंट्री हुई कोविड के पहले हुई। एंड कोविड में मैंने भाग्य संकेत तो बंद किया, ये आपको बताया, बट कोविड में समय इतना मिला तो आई रजिस्टर्ड इन 2016 योग की PhD। इसके पहले मैंने कम्युनिकेशन मैनेजमेंट पे पूना यूनिवर्सिटी से PhD की थी व्हेन आई वाज इन स्टॉक मार्केट एंड आई लेफ्ट माय जॉब। तो 1990 में मुझे पहली PhD पूना यूनिवर्सिटी से मिली, बट सेकेंड PhD आई डिड इन कोविड because I written my thesis, I published my papers, and do you know under whom I did? You will really, really surprised to know his name. His name is Dr. H.R. Nagendra. Okay. Dr. H.R. Nagendra, who is a guru of our Prime Minister Narendra Ji Modi, Yoga Guru. Or Narendra Ji Modi has made a revolution of yoga in all 197 country accepted, and they started this International Yoga Day, 21st June and everything. And Modi Ji himself is doing yoga under whose guidance? Dr. H.R. Nagendra. He was my guide. And he gave me a subject of obesity. I wanted to do in stress management because I thought when I was in stock market, lot of stress people carry. So how to reduce their stress? Let's work on stress management. But he said, now obesity of children, that is adolescent, is a global problem, and I feel you should study this subject. So I studied in that subject. I've developed my module. I have developed a yoga module, which we call integrated module. In that we have yogasana, pranayama, breathing, meditation, everything together. It is a one capsule that we give it to student and they are doing. I did the pilot study after developing module. Pilot was successful. Then I did main study. I published paper, and recently I have written book also. Name is Reduce. Okay. It's available on Amazon, and many youngsters are following that module and those diet tips given by my co-author Ashish Rathi. So this is my publication on my research, which is Reduce. सो मैम, आपने इतना रिसर्च किया योगा में, आप खुद योगा प्रैक्टिस भी करते हो, डू यू थिंक प्रैक्टिसिंग योगा हेल्प्स यू टू टेक बेटर डिसीजंस इन योर बिजनेस? क्या आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बेटर होती है योगा प्रैक्टिस करने से? Yes, yes. See, word yoga is not there only. Original word is yoga. Yoga is a westernized word. Yoga is calming down your mind, being with yourself.
अंडरस्टैंडिंग योर ओन पोटेंशियल, सेल्फ रियलाइजेशन। आपको लाइफ में सक्सेस कब मिलता है? जब आपको आपके पोटेंशियल पता चलते, व्हेन यू रियलाइज व्हाट आई एम, व्हाई आई एम, हु एम आई। ये सारे क्वेश्चंस आप जब योग करते हो, बिकॉज योग इज अ नॉट फिजिकल आसना, व्हाट यू यंगस्टर्स कैरी कि योगासन यानी कोई तो भी अच्छा एडवांस आसन करो, उसका फोटो निकालो, सेल्फी निकालो, फेसबुक पे डालो, इंस्टा पे डालो, पॉपुलर हो जाओ। योग इज नॉट ओनली दैट, यू नो, योग इज समथिंग डिफरेंट। Sage Patanjali 2000 year before defined yoga as an Ashtanga yoga, yam, niyam, asana, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan, samadhi. So if you want to go and take a path of spirituality, not like you, many youngster comes and ask us, okay, can you give us 1 month meditation course or 1 month spirituality? We want to go on that path. So yoga is not that. First you have to start with some discipline, then asana, then you have to learn pranayam, then you have to learn some relaxation technique. So it's a journey, and journey is from self to self. So yoga is cooling down and calming your mind. ओके, सो आपने अभी योगा कर लिया, अभी आपका लाइफ पर्पस क्या है? आप कोई पर्पस सॉल्व करना चाहते हो इस लाइफ में? जैसे कि हर आपने जैसे योगा बोला इज टू फाइंड हु यू आर, व्हाट इज योर पर्पस। सो आपका कोई लाइफ पर्पस है जो आपने सोचा मुझे इस चीज को सॉल्व करना है, या मेरे को इस चीज को हेल्प करनी है लोगों की, या मैं इस चीज के लिए आई हूँ लाइफ में? आपको लगता है कुछ ऐसा है? देखो, थ्रू आउट माई जर्नी आई ट्राई टू हेल्प ओनली, जिसको अपन एक सेक्रीफाइस कहते हैं। सी आई फील आई सेक्रीफाइस माई करियर गोल्स फॉर माई फैमिली. Then when I came to college, I was just concentrating on my girls, their problem, making a good path for them, what is right, what is wrong. When I came to stock market, I decided to solve my clients' problem. And that time I realized that people think money is everything. But when they lose in one day, they realize that money is not everything. And then they lose their health also. So that time, then coming to animation, many rural students coming, ग्रामीण भाग के बच्चे आते थे, तो उनको भी गाइड करना। तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे लाइफ का पर्पस इज गिविंग गाइडेंस हु नीड। फिर एस्ट्रोलॉजिकली भी आई वांट टू गिव गाइडेंस टू पीपल। आजकल जो मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम है, ब्रेकअप प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, करियर प्रॉब्लम है, यंगस्टर को जल्दी पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, सब कुछ फास्ट चाहिए। हमारी करियर आप देखोगे तो धीरे धीरे हम ऊपर आए, बट अभी ये जनरेशन के पास टाइम नहीं है। क्या कहते हैं, अटेंशन स्पैन, वो कम होते जा रहा है। तो मैं इनके प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हूँ। और दूसरा, कोविड में हमने देखा कि लोगों ने बहुत सफर किया, तो वेलनेस, फिटनेस, इस क्षेत्र में मैं काम करना चाहती हूँ कि आदमी यदि खुद वेलनेस से दूर भाग रहा है, क्यों दूर भाग रहा है? ऑल हमारी स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल, जैसे खाने की, पीने की, आजकल सब कुछ एक क्लिक पे मिलने लगा है ना। खाना भी आपको आ ही जाता है, जैसे ही ऑर्डर करो, 2 व्हीलर पे आदमी आता है, आपको डिलीवरी देता है, आप खाते हैं ना, आप टाइम देखते हैं ना कुछ देखते। तो मुझे ऐसे लगता है हमारे इंडियन एंशिएंट साइंस का यदि हम डेप्थ में पढ़ाई करें, तो वो हमारे लाइफ में एक अच्छा सुकून, जिसको बोलते हैं ब्लिस आपकी भाषा में जिसको बोलते हैं। से देखो, हैप्पीनेस तो बहुत छोटा शब्द है, बट हैप्पीनेस से आगे सिर्फ एंजॉय करना इज नॉट लाइफ। लिविंग हैप्पीली, ब्लिसफुली, हेल्पिंग अदर्स। तो मुझे ऐसा लगता है आई लाइक टू हेल्प अदर्स, आई लाइक टू हेल्प यंगस्टर्स फॉर देयर स्टार्टअप, आई लाइक टू हेल्प बडिंग आर्टिस्ट, आई लाइक टू गाइड दिस मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम, आई लाइक टू हैंडल कॉर्पोरेट प्रॉब्लम। कॉर्पोरेट में भी लोगों के पैकेजेस बहुत अच्छे। अब हम लोग जब मानो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देते हैं योग का, तब हम देखते हैं उनके पास काम है, दिन भर काम है, दे डू नॉट हैव टाइम फॉर देयर वेलनेस, देयर फिटनेस। तो हमने अभी नया मॉड्यूल निकाला, योगा ब्रेक। हम उनको बोलते 10-10 मिनट के ब्रेक लो और आप योग करो। तो इस प्रकार से यदि आप पूछते हैं, मेरे लाइफ का एम है वेलनेस, हैप्पीनेस एंड ब्लिस, माई सेल्फ, माई फैमिली एंड सोसाइटी, और मानवता के लिए काम करना है। अभी मानवता के लिए हमने काम चालू किया है। वी आर वर्किंग फॉर स्पेशल चिल्ड्रन by providing them different types of yoga, and really it's immense satisfaction for me.
मैम ऐसी आपने जैसे बोला कि योग से आपने 10 मिनट्स का ब्रेक की बात की कि लोग आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में दे रहे हो, ऐसा कुछ एक योगा हम यहाँ पे बैठे बैठे कर सकते हैं जो लोग भी देखे और हमको भी यहाँ पे फ्रेश फील हो जाए या एनर्जाइज हो जाए हम, और कुछ एक प्रैक्टिस आप हमें बता सकते हो यहाँ पे? व्हाई नॉट, लेट्स डू। आपको भी करना है साथ में। इंटरलॉक योर फिंगर्स, टेक योर हैंड, स्ट्रेच, सीधा रखो मानो, टच योर बाइसेप्स टू योर ईयर्स, बोथ बाइसेप्स, एंड स्लोली टर्न टू योर राइट। चले जाओ राइट साइड को, होल्ड इट फॉर 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Come to the center. Now balance yourself. So do from this side also. Left side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Come to the center. Feel the stretch. Stretch where your spinal cord, your tailbone. Slowly bring it down. And now take a deep breath in. Breathe out. Take a deep breath in and breathe out. Last time, take a deep breath in and breathe out. And see, you will feel yourself energetic. This is a very small practice. You can do anytime, wherever you are, at your workplace, sitting in chair or anywhere. So there are many practices which are scientifically designed. मैम ये करके तो एनर्जाइज का तो पता नहीं, बट बैक को बहुत अच्छा फील हुआ, बिकॉज हम जैसे भी यहाँ पे भी बैठे थोड़ा बैक पेन हो रहा था, बट ये किया तो बैक पेन गायब हो गया ऐसा लग रहा है। अभी हमें एक्सपीरियंस आया है कि जो कॉर्पोरेट में हमने प्रैक्टिसेस चालू की है, उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर उनका बैक पेन जो पिल्स लेके, जो डॉक्टर के पास जाके एक्सरे निकाल के एमआरआई करके नहीं निकल रहा था, वो भी जा रहा है। सो यू आर राइट मानो, बैक पेन के लिए और जिनका जॉब ज्यादा लॉन्ग टाइम सिटिंग है, उनके लिए ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। मैम इट वाज रियली वंडरफुल टू नो सो मेनी थिंग्स, इतने सारी चीजें आपने शेयर की, आपके एक्सपीरियंसेस बताए। मुझे एक क्वेश्चन है आपसे, ऐसा क्वेश्चन है कि अभी अगर आप इमेजिन करो कि आप एक 25 इयर्स के हो अभी, एंड आपको अभी आपका बिजनेस स्टार्ट करना है, अभी आपको एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करनी है, आप 2024 में हो, यू आर 25 इयर्स ऑफ एज एंड यू वांट टू स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योर जर्नी, तो ऐसी क्या चीजें आप आपके दिमाग में रखोगे, क्या क्या माइंडसेट होगा आपका अभी टू मेक योर बिजनेस सक्सेसफुल इन द नेक्स्ट 5 इयर्स? आई फील अभी का जो पीरियड है ना, इसमें सबसे अच्छा होता है काउंसलिंग। इट इज अ रिक्वायरमेंट। हम देख रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स बता रहा है कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, एग्रेशन में जा रहे हैं, पैम्पर्ड हो रहे हैं। हमारे वक्त पैम्पर्ड बच्चे थे ही नहीं, क्योंकि पता है हमारे फादर कहते थे गाइड यूज करना नहीं, एक्स्ट्रा क्लास लगाना नहीं, सेल्फ स्टडी करो, सिचुएशन में तुम सॉल्यूशन निकालो। तो इस प्रकार का नहीं था। अब हम देखते हैं कि पेरेंट्स को बच्चे कितने हैं, बहुत कम है, तो वो पैम्पर्ड होते हैं, उनको बगैर मांगे चीजें मिल जाती है, और ऐसे केस में उनका जो एक नर्चरिंग होता है वो भी गलत होता है। और फिर उनको प्रॉपर दिशा दिखाने का काम, डायरेक्शन देने का काम एक अच्छे काउंसलर का होता है। और काउंसलर वो होना चाहिए, नॉट ओनली साइकोलॉजी का उसका स्टडी हो, उसका वेलनेस का स्टडी हो, उसका साइकोलॉजी का हो, उसका एजुकेशन का हो, उसका फाइनेंस का हो। तो मुझे ऐसा लगता है, इफ आई वांट टू स्प्रेड वेलनेस, if I want to counsel people, whether it's astrology, whether it's my experience, I would like to give bliss and peace to person whosoever meet me and come to me. So wellness is my preferred choice. And another thing, guiding with star, because I believe astrology is a science, it's a planetary science. So if I combine this health and astrology, I will able to give you wealth, but bigger than that, your peace, mind peace जिसको हम कहते हैं। और माइंड ग्रोथ सेट बनाने के लिए पहले हमारे माइंड को काम डाउन करना पड़ता है, और यदि हम माइंड को काम डाउन कर पाए तो लाइफ में हमको डायरेक्शन मिलेगा, हम डेडिकेशन से काम कर पाएंगे, हमारे लाइफ में डिसिप्लिन होगी, और हम लाइफ में वो करना चाहेंगे
जिसकी कंसिस्टेंसी रहेगी। तो मैं चाहती हूँ कि आई शुड बी अ काउंसलर, करियर एडवाइजर, एज वेल एज वेलनेस एडवाइजर, एज वेल एज रिलेशनशिप एडवाइजर। आई डोंट नो। सो मैम अभी हम जैसे एंड पे आ रहे हैं पॉडकास्ट के, सो एक क्वेश्चन मुझे ऐसा है कि सक्सेस मंत्र क्या है आपका लाइफ में? क्या सक्सेस मंत्र है आपका जो हमें जानना चाहिए और जिससे लोगों को भी अच्छा लगे, इंस्पायर हो? सक्सेस मंत्र के लिए मानो मेरे पास ABCDE है। A फॉर एक्सेप्टेंस। यू एक्सेप्ट सिचुएशन इन लाइफ। B ब्रिलियंस। आपको लगता ही है, आपका ब्रेन काम करना ही चाहिए। C कैटेगरी। मेरे पास उसके लिए 3 जवाब है। C मीन्स क्लैरिटी। आपके थॉट्स में क्लैरिटी चाहिए, आपके गोल्स में क्लैरिटी चाहिए। उसके बाद में कंपैरिजन मत करो। C स्टैंड फॉर कंपैरिजन। यू डोंट कंपेयर। इफ यू वांट टू कंपेयर, कंपेयर विथ योरसेल्फ। एंड C इज अ कंसिस्टेंसी। जो भी कर रहे हो कंसिस्टेंटली करो तो आपको ग्रोथ मिलेगा। D में आता है डेडिकेशन, डिवोशन, डिसीजन मेकिंग एंड डिटर्मिनेशन। और E ये लास्ट है, लीव योर ईगो। If you live with ego, you cannot live. So if you leave ego from your life, you can really achieve success. And this is the success mantra, ABCDE. ओके मैम, ये बहुत अच्छा सक्सेस मंत्र था, समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक, एंड इट वाज रियली नाइस टू नो दैट आपका सक्सेस मंत्र ABCDE होता है। ये किसी ने सोचा ही भी होगा कि ऐसा सक्सेस मंत्र हम बना सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड इंसाइट। Yes, छोटे बच्चों को भी आप ये ABCD सिखा दीजिए। सो मैम, आपकी जो एडवाइसेस सुने एंड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपका है, जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है, इट्स वेरी मीन्स इंस्पिरेशनल फॉर मी, बिकॉज ऐसा माइंडसेट आपका तब था जब आपने आपकी जर्नी स्टार्ट की थी। आप एक एंटरप्रेन्योर 1980 से हो, आपने अपने इतने सारे बिजनेसेस ग्रो किए एंड यू आर स्टिल थिंकिंग कि आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है। दैट शोज कि माइंडसेट कितना शार्प होना चाहिए, जो आजू बाजू की चीजें होती है हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए। सो मैम, आज तो मुझे बहुत सीखने मिला है। आई एम रियली इंस्पायर्ड एंड थैंक यू मैम कि आपने मुझे आपका इतना ज्यादा टाइम दिया ये पॉडकास्ट के लिए। एंड मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, नोइंग कि आप बहुत बिजी रहते हो, बट इफ अगर आप पार्ट 2 हम निकाल सके इस पॉडकास्ट का, दैट विल ओनली फोकस ऑन एस्ट्रोलॉजी। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर अस एंड फॉर द पीपल हु विल वॉच दिस पॉडकास्ट की जो जो ज़ोडिएक साइंस होता है वो कब कैसे रिएक्ट करते हैं, किन चीजों से बच के रहना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए जिससे हम ग्रो। तो इट वुड बी अ वेरी गुड थिंग फॉर मी एंड मैं श्योरली करना चाहूंगा पार्ट 2 स्पेसिफिकली ऑन एस्ट्रोलॉजी। यस मानो, क्योंकि मैं हमारे पॉडकास्ट सुनने वालों को भी बोलना चाहूंगी कि भविष्य में छिपी बातों को जानने का प्रयास सदियों से मानव करता आ रहा है और एस्ट्रोलॉजी उसमें एक अच्छा गाइडेंस देता है। तो जब भी इसका योग आएगा मानो, वी विल डू दैट पॉडकास्ट ऑन एस्ट्रोलॉजी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, योर पॉडकास्ट, and the way you decided to help others through your podcast. I'm really impressed, really impressed. And I pray Ganesha, he will give you all blessings continuously, consistently to grow high and fly high in the sky. Thank you. Thank you.